An AC voltmeter using full wave rectification and having a sinusoidal input has an AC sensitivity equal to 0.9 times DC sensitivity. कहते हैं an AC voltmeter using full wave rectification and having a sinusoidal input has an AC sensitivity equal to 0.9 times into DC sensitivity. 2 meter X and Y require 40 milliampere and 50 milliampere respectively to give full scale deflection. Then X is more sensitive, क्योंकि सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1/करंट। तो करंट जितना कम होगा जिसका, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग विद इट्स ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग विद इट्स ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या है? मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या है? मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन है द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी which can be detected with its certainty. Resolution क्या है? The smallest change in the input quantity which can be detected with its certainty. Static, static क्या है? Ratio of infinitesimal change sensitivity in output to infinitesimal change in input. Consider the following statements about the d orthogonal movement. तो d orthogonal movement जो होता है ना, it is best suited for DC current measurement. d orthogonal movement जो होता है ना, best suited for DC current measurement. और दूसरा होता है it responds to the average value of current. Torque to weight ratio of an instrument indicates sensitivity. कहते हैं टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स करता है सेंसिटिविटी को। ठीक है, टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स सेंसिटिविटी। अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट। कहते हैं अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट। डेसिबल स्केल इज यूजफुल while measuring voltage covering wide frequency ratio. कहते हैं डेसिबल स्केल इज यूजफुल while measuring voltage covering wide frequency ratio. For time and frequency, the working standard is crystal controlled oscillator. कहते हैं for time and frequency the working standard is crystal controlled oscillator. The difference between the indicated value and the true value of a quantity is absolute error. कहते हैं the difference between the indicated value and the true value of a quantity is absolute error. Integrating principle is in the digital measurement is the conversion of voltage to frequency. कहते हैं integrating principle in the digital measurement is the conversion of voltage to frequency. The application of the instrument in wrong manner in the procedure of measurement results in instrument error. कहते हैं the application of the instrument in wrong manner in the
procedure of measurement results in instrument error. Which one of the following statements correctly represents the systematic error? तो वो होता है these errors can be calculated from the details of the instrument. जो systematic error होता है these errors can be calculated from the details of the instrument. कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली अ करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वह है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वह करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होता है? करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है पीएमएमसी। पीएमएमसी जो है वह करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। Which one of the following decides the time of response of an indicating instrument? ये दिखाता है डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का टाइम रिस्पॉन्स कितना होगा। टाइम रिस्पॉन्स जो होता है ना इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, वह शो करता है, वह डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम। Which one of the following decides the time of response of an indicating instrument? Damping system. When reading is taken at half scale in the instrument, the error is more than full scale error. कहते हैं when reading is taken at half scale in the instrument, the error is more than full scale error. For defining the standard meter, wavelength of which material is considered? Krypton. कहते हैं for defining the standard meter, wavelength of krypton material is considered. अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में है इंस्ट्रूमेंट और लिस्ट 2 में है एरर। पहला पीएमएमसी वोल्ट मीटर। जो पीएमएमसी वोल्ट मीटर होता है ना उसमें टेम्परेचर एरर होता है। पीएमएमसी वोल्ट मीटर में टेम्परेचर एरर। एसी आमीटर, एसी आमीटर में होता है एडी करंट एरर। एसी आमीटर में क्या होता है? एडी करंट एरर। करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर में होता है फेज एंगल एरर। करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है? फेज एंगल एरर। और चौथा है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में होता है ब्रेकिंग सिस्टम एरर। एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग सिस्टम एरर होता है। एक और लिस्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लिस्ट 2 में है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ओम मीटर, ओम मीटर जो है वह इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओम मीटर क्या है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वाट आवर मीटर, वाट आवर मीटर जो है वह है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वाट आवर मीटर इंटीग्रेटिंग बैलेंस है। क्या है? वाट आवर मीटर क्या है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या इंटीग्रेटिंग बैलेंस है। ठीक है, बात करते हैं नल बैलेंस की। तो नल बैलेंस जो है वह रिकॉर्डर्स है। नल बैलेंस क्या है? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर्स। और रिले करंट, जो रिले करंट होता है वह है एब्सोल्यूट। ठीक है, रिले करंट क्या है? एब्सोल्यूट। अब लिस्ट 1 प्रॉपर्टी है और लिस्ट 2 में टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इनको मैच करना है। ठीक है, लीनियर स्केल, जो लीनियर स्केल होता है ना वह होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का। ठीक है, लीनियर स्केल किसका होता है? पीएमएमसी का। ट्रू आरएमएस अप टू आरएफ रेंज, ये होता है थर्मोकपल टाइप का। कहते हैं ट्रू आरएमएस अप टू आरएफ रेंज, तो ये होता है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तीसरा है आरएमएस ओनली फॉर साइनसॉइडल इनपुट, तो ये होता है रेक्टिफायर टाइप का। रेक्टिफायर टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है? आरएमएस ओनली
फॉर साइनोसॉइडल इनपुट। और चौथा है रीड्स आरएमएस वैल्यू यूजिंग स्क्वायर लॉ स्केल। तो ये होता है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, रीड्स करता है आरएमएस वैल्यू यूजिंग स्क्वायर लॉ स्केल। द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी। ये फॉल करता है सिस्टमैटिक एरर्स में। कहते हैं द एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन सिस्टमैटिक एरर। फॉल इन सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स आर यूज्ड प्रिंसिपली टू एम्पलीफाई सिग्नल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर्स। कहते हैं द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स आर यूज्ड प्रिंसिपली टू एम्पलीफाई सिग्नल्स फ्रॉम ट्रांसड्यूसर्स। अब जो है लिस्ट 1 में जो है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और लिस्ट 2 में एग्जाम्पल है, दोनों को मैच करना है। पहला है इंडिकेटिंग। जो इंडिकेटिंग टाइप का होता है वह है वाटमीटर। वाटमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है ना इंडिकेटिंग टाइप का है। दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो होता है वह होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है ना वह एब्सोल्यूट होता है। तीसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो है ना एंड्रॉयड बैरोमीटर। जो एंड्रॉयड बैरोमीटर है वह रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। और चौथा है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग जो होता है ना वह एनर्जी मीटर होता है। जो एनर्जी मीटर जो होता है ना इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब मैचिंग कराना है। लिस्ट 1 में मीटर है और लिस्ट 2 में उसके टाइप है, मीटर का टाइप। तो पहला है रीड फ्रीक्वेंसी मीटर। रीड फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है ना वाइब्रेटिंग टाइप होता है। रीड फ्रीक्वेंसी मीटर जो है वह वाइब्रेटिंग टाइप का होता है। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर होता है मूविंग आयरन टाइप। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर होता है मूविंग आयरन टाइप। तीसरा आता है वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप। ये होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप। वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप जो होता है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप होता है। और चौथा है ओम मीटर। ओम मीटर जो होता है मूविंग कॉइल टाइप का होता है। ओम मीटर जो होता है मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट आर द काउज ऑफ ग्रॉस एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। पहला है मिस रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं व्हाट आर द काउजेज ऑफ ग्रॉस एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। तो ग्रॉस एरर जो होता है ना वो ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मिस रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हो जाएगा इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ठीक है, मूविंग आयरन एंड हॉट वायर टाइप। मूविंग आयरन और हॉट वायर टाइप जो है ना ये होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसमें यूज करते हैं मूविंग आयरन एंड हॉट वायर टाइप में। इसमें एयर फ्रिक्शन यूज होता है, एयर फ्रिक्शन यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। गैल्वेनोमीटर में जो है पैरामीटर्स जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैरामीटर्स यूज होता है गैल्वेनोमीटर में। पीएमएमसी में जो पैरामीटर्स यूज होता है वो एडी करंट यूज होता है। पीएमएमसी टाइप में एडी करंट यूज होता है। और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप में होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप में कौन सा होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। If a high frequency AC signal whose RMS value is √2 volt, if applied to a PMMC instrument, then the reading of the instrument will be 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि PMMC इंस्ट्रूमेंट जो रीड करता है ना वह एवरेज वैल्यू रीड करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम RMS दे रहे हैं
RMS दे रहे हैं तो RMS वो 0 रीड करेगा, बिकॉज PMMC इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग DC क्वांटिटीज। ठीक है, इसलिए हम अगर AC क्वांटिटी दे रहे हैं तो वह 0 रीड करेगा। The following is not essential for the working of an indicating instrument। तो ये है ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में, ये इंडिकेटिंग में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क का। The technique used to check quantitatively whether the given data distribution is close to Gaussian distribution is standard deviation of mean। कहते हैं the technique used to check quantitatively whether the given data distribution is close to Gaussian distribution is standard deviation of mean। ठीक है, which of the following instrument will be used to measure a small current of very high frequency। ये करता है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ना, थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज्ड करता है मेजर अ स्मॉल करंट ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज्ड टू मेजर अ स्मॉल करंट ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये करता है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर needed to provide a potentiometer with a resolution of 0.05%। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर हो जाएगा 1/रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन कितना है 1/0.05%। तो इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 टर्न्स के पास। ठीक है, 2000 टर्न्स हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर में अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हो जाएगा 1/रिजोल्यूशन। ठीक है, द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिपीटेबिलिटी कंटिन्यू टू रिमेन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। कहते हैं द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू, रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू द डिग्री to which repeatability continue to remain within specified limits। The degree to which an instrument indicates the changes in measured variable without dynamic error is fidelity। कहते हैं the degree to which an instrument indicates the changes in measured variable without dynamic error are fidelity। fidelity क्या है? fidelity है the degree to which an instrument indicates the changes in measured variable without dynamic error। loading by measuring instrument introduces an error in the measured parameter। which of the following device gives the most accurate result? ये देता है CRO। कहते हैं loading by the measuring instrument introduces an error in the measured parameter। which of the following devices gives the most accurate result? तो ये देता है CRO। रेंज ऑफ एरर, रेंज ऑफ एरर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटे 2। अगर 4-5 रीडिंग दे रखी है और रेंज पूछा जाए एरर का, तो रेंज एरर का हो जाएगा जो मैक्सिमम रीडिंग होगा उसमें घटा देंगे मिनिमम रीडिंग को बटे 2 कर देंगे। ठीक है।